Dear students, today our topic is chemical properties of carboxylic acids. Chemical properties of carboxylic acids. कल मैंने आपको पढ़ाया था जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मैंने उधर भी बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain C double bond OH as their functional group. C double bond OH as their functional group, or in simple words COO as their functional group. And in this carboxyl group, this is called carboxyl group. तो मैंने ये भी आपको बताया था, इसमें this carboxyl group contains two groups, carbonyl group and hydroxyl group. And this carbon is attached to one side by a double bond, and attached to one side by oxygen atom by a double bond, and on the other side it is attached to hydroxyl group by a single bond, and the third side is linked to an alkyl or aryl group or hydrogen atom. This is the simple introduction about the carboxylic acids. But today our main topic is the chemical properties of carboxylic acids. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका एसिडिक कैरेक्टर. Carboxylic acids are acidic in nature. They are distinctly acidic in nature. तो acidic in nature का मतलब है they ionize in the aqueous solution, or they ionize in water. To form hydronium ion. That means carboxylic acids, they liberate proton. Those substances which give proton in the aqueous solution are called the acids. That is why carboxylic acids are acidic in nature. तो हम एक रिएक्शन लिखेंगे. This is a carboxylic acid, RCOOH. This is the general formula of carboxylic acid. When it is dissolved in the water, जब ये पानी में डाला जाएगा, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा in the form of a proton. This is a reversible reaction. RCOO प्लस निकलेगा H3O, तो यहाँ पॉजिटिव चलेगा. This is the indication of a proton, and this is carboxylate ion. तो मैंने कहा कि carboxylic acids are distinctly acidic in nature. They ionize in water to form hydronium ion. That hydronium ion. Go carboxylic acid plus water, it gives carboxylate ion and hydronium ion. That means it loses hydrogen atom in the form of a proton. However, these carboxylic acids, they are less stronger acids than the mineral acids. What are the mineral acids? That is H2SO4, HNO3, or ICl. Carboxylic acids are less stronger acids. They are less acidic than the mineral acids such as sulfuric acid, nitric acid, or HCl. That is why these mineral acids are called strong acids, because they completely dissociate in the aqueous solution, whereas the carboxylic acids are weaker acids because they do not completely dissociate in aqueous solution. That is why the carboxylic acids are less stronger acids than the mineral acids. And you know the mineral acids are sulfuric acid, nitric acid, and hydrochloric acid. However, the strength of these carboxylic acids depends upon the extent of ionization, which in turn depends upon the stability, of
stability, which in turn depends upon the stability of carboxylate ion. Carboxylate ion. Since the carboxylate ion are, in other words, we can say anion. In other words, we can say anion. So this, since carboxylic acids are acidic in nature, because the carboxylate ion is strong, the carboxylate ion is stable. Because the carboxylate ion formed as a result of ionization is stable, which indicates that carboxylic acids are acidic in nature. This is the acidic character of carboxylic acid. तो मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि जब इनको पानी में डाला जाता है, पानी में डालकर ये आयनाइज होता है, कार्बोक्सिलेट आयन अलग निकलता है, फिर हाइड्रोजन आयन अलग निकलता है। तो हाइड्रोजन आयन अलग निकलता है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये मिनरल एसिड्स तो आप जानते होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, ये क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है। ये इन एसिड से लेस एसिडिक है, इट इज लेस एसिडिक या लेस स्ट्रॉन्गर। इसकी वजह यह है कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो फिर प्रोटॉन देते हैं, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, फिर पॉजिटिव आयन्स देते हैं। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, वो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड होती है एक्सटेंट ऑफ डिसोशिएशन, यानी कितना ये डिसोशिएट होगा, और फिर जो उधर से निकलेगा एनायन, वो एनायन जो होता है वो कितना स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड है, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन। अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन जो निकलता है ये स्टेबल है, that is why when it is stable, that is why we can say that the carboxylic acids are acidic in nature. तो एसिडिक, तो हम कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज लिखेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा, कुछ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे जिससे हमें ये साबित होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। सबसे पहले नंबर 1 है एक्शन ऑन लिटमस पेपर। एक्शन ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स टर्न बिल्लू लिटमस रेड। ये बिल्लू लिटमस को रेड बनाता है, बिल्लू लिटमस रेड। अगर हम बिल्लू लिटमस को रेड बनाता है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्लू लिटमस को डालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये रेड बनेगा, जिससे ये इंडिकेट करेगा इट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके बाद इट इज अ सिंपल रिएक्शन, इट इज अ सिंपल एक्शन। तो उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, reaction with active metals, reaction with active metals, reaction with active metals। हम लिखेंगे पहले रिएक्शन, फिर आपको समझ आएगा। पहले लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल फार्मूला, इसको सिंपली हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम करेंगे एक्टिव मेटल सोडियम ऐड, तो ये देगा हाइड्रोजन एटम लिबरेट हो जाएगा RCOO कार्बोक्साइड, फिर उसके साथ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसके साथ मिलेगा, ये बनेगा RCONA प्लस निकलेगा हाइड्रोजन। तो इसी तरह अगर हम इसको हम रिप्लेस करेंगे R को CH3 से, इसका मतलब ये होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। आपको इम्तिहान में पूछा जाता है एसिटिक एसिड, पर इसको सोडियम करेंगे ऐड, तो यहाँ R आ गया, यानी कार्बोक्सिलिक अल्काइल ग्रुप, तो R की जगह यहाँ CH3 है, बाकी वही CH3COONA। इसको हम एसिटेट पढ़ते हैं, जो मैंने बहुत बार आपको पढ़ा है, लेकिन ये सोडियम है, इसको पूरा नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस निकलेगा हाइड्रोजन। तो उसके अगर हम लिखेंगे C6H5COOH, अगर ये एसिटिक एसिड है तो मैंने बहुत बार बताया है इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको इम्तिहान में ये भी पूछा जाता है, बेंजोइक एसिड भी पूछा जाता है, एसिटिक एसिड भी पूछा जाता है, जो भी आपको पूछा जाएगा इसी तरीके से करना है। अगर आपको कहेंगे reaction of how will you prepare acetic acid, what happens when acetic acid reacts with, नीचे दिया होगा सोडियम, नीचे दिया होगा अल्काइल, कुछ दिया होगा, फिर रिएक्शन इसके साथ किस तरह बनती है, फिर इसी तरह बेंजोइक एसिड की आ सकती है। तो इसको यहाँ लिखेंगे C6H5, यही C6H5 इसकी जगह,
तो COONA प्लस H2। तो मैंने कहा अगर CH3COO इसको हम कहते हैं एसीटेट, इसको हम कहते हैं क्या एसीटेट। अगर ये C6H5COO होगा तो इसको हम कहते हैं बेंजोएट, बेंजोएट। तो अगर ये बेंजोएट है तो यहां तो आपको मालूम है सिंपल है सोडियम, तो हम इसको कहेंगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो अब हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, तो हम क्या, आप क्या लिखोगे, कार्बो, इसी तरह मैग्नीशियम के साथ हम लिखेंगे, चलो हम लिखेंगे CH3COOH प्लस लिखेंगे मैग्नीशियम। चूंकि कार्बोक्सिलेट आयन की चार्ज -1 है, ये मोनोवैलेंट नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीशियम डाइवैलेंट पॉजिटिव है, तो यहां ये डाइवैलेंट ये बनेगा CH3COOH होल ट्वाइस का ये मैग्नीशियम का आएगा COOM होल ट्वाइस Mg प्लस आएगा हाइड्रोजन, जब ये ट्वाइस हो जाएगा तो इसको कहेंगे मैग्नीशियम एसीटेट। ये अगर सोडियम एसीटेट है तो ये क्या है, मैग्नीशियम एसीटेट। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन आपको सिखाएंगे। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, आप लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, calcium, etc. to form corresponding salts, corresponding salts with the liberation of hydrogen gas, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स react with active metals like sodium, magnesium, इसी तरह जिंक, एल्यूमिनियम जिंक के साथ मिलाओगे तो यहाँ जिंक आएगा, कैल्शियम के साथ मिलाओगे तो यहाँ मैग्नीशियम आएगा, बाकी सेम। They react with the active metals like sodium, like potassium, like zinc, like this magnesium, etc. to form salts, to form corresponding salts. Corresponding salts का मतलब है अगर सोडियम के साथ मिलेगा तो सोडियम एस्टेट बनाएगा, सोडियम साल्ट बनेगा, मैग्नीशियम के साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम साल्ट बनेगा, जिंक के साथ with the liberation of hydrogen, और लेकिन हर जगह हाइड्रोजन निकलेगा, which also indicates the acidic character of carboxylic acid। तो आपको समझ आ गया, तो ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की फार्मूला है जिसको हम सोडियम ऐड करते हैं, जब सोडियम के साथ रिएक्ट ये होता है ये देता है सोडियम एसिटेट, चूंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसको कहेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर इसी तरह अगर हमारे पास एस्टिक एसिड होगा, एस्टिक एसिड को सोडियम मिलेंगे तो सोडियम एसिटेट देगा। अगर आपको बेंजोइक एसिड इम्तिहान में पूछा जाएगा तो बेंजोइक एसिड के साथ ये खुद निकालना है कि एस्टिक एसिड अगर पूछेंगे तो हम किस तरह वहां करेंगे, बेंजोइक एसिड अगर पूछेंगे तो किस तरह करेंगे, तो बेंजोइक एसिड के साथ देगा सोडियम बेंजोइक। दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स। तो उसके बाद रिएक्शन विद अल्कलीज, दूसरी है रिएक्शन विद अल्कलीज, ALKALIS। अल्कली हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स react with alkalis. Carboxylic acids simply neutralize alkalis. They neutralize alkalis. Carboxylic acids neutralize alkalis. They neutralize alkalis to form salts and water. To form salts and water. तो हम लिखेंगे CH3COOH, ये है CH3COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस लिखेंगे अल्कली HONA, ये असल में है NaOH है, हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कली। तो इसका ये वाटर जो इसके साथ OH मिलेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन ही देता है, ये बनेगा HOH। HOH का मतलब हो गया वाटर। पहले लिखेंगे बाकी क्या रहा, CH3COO, यहाँ Na, CH3COONA, ये CH3 प्लस निकलेगा H2O। तो मैंने क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स न्यूट्रलाइज अल्कलीज। जब अल्कली में कार्बोक्सिलिक एसिड्स डालते हैं तो ये न्यूट्रलाइज करता है इसको, फिर वहां देता है एक साल्ट देता है और वाटर देता है। तो मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कली। तो ये एसिटिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे तो इसी तरह एसिटिक एसिड, तो इसको करेंगे इससे, ये अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज एन अल्कली, ये सोडियम एसिटेट है
प्लस वाटर है. दिस इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्स. इसी तरह बेंजोइक एसिड के साथ दिस इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्स एसिड्स विद द अल्कलीज. तो इसके बाद हमारे पास रिएक्शन विद कार्बोनेट्स and bicarbonates. तो कार्बोनेट का फार्मूला है CO3 ए कार्बन. दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट. अगर HCO3 होगा तो ये इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट. तो आपको रिएक्शन है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स. पहले देखेंगे these are carboxylic acid. they decompose carbonates. हम लिखेंगे सीधा एसिटिक एसिड की फार्मूला. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तो RCOH लिखना है. तो मैंने वो देखा है, आप खुद भी लिख सकते हैं. एसिटिक एसिड प्लस लिखेंगे Na2CO3. इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट जब when it is treated with sodium carbonate ये देगा CH3COONA सोडियम एस्टेट प्लस निकलेगा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. देखिए इसी तरह हम लिखेंगे ये CH3 यहाँ ट्वाइस आएगा चूंकि सोडियम 2 बार है. यहाँ ट्वाइस आएगा तो इसका मतलब यहाँ ट्वाइस CH3COOH प्लस लिखेंगे NaHCO3. ये सोडियम बाइकार्बोनेट. तो हम इसको अगर रिएक्ट करेंगे ये बनेगा यही बनेगा यही प्रोडक्ट निकलेगा CH3COON प्लस CO2 प्लस H2. इसको डबल बबल नहीं आएगा. इसको ये बैलेंस ऑलरेडी है. इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट. इसको कहते हैं सोडियम एस्टेट. देखिए अब क्या लिखेंगे carboxylic acids react with carbonates and bicarbonates and decompose them to form salts with brisk effervescence of carbon dioxide. What do you mean by effervescence? Effervescence means the bubbles in the solution. Brisk effervescence, that is bubbles in the solution. Yani bubbles in the form of gas. Bubbles in the form of gas. In solution. This is the meaning of effervescence. यानी कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह बेंजोइक एसिड आप लिख सकते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स react with carbonates, that is sodium carbonate and sodium bicarbonate and decompose them to form sodium acetate and carbon dioxide with brisk effervescence of carbon dioxide. तो जब हमने लिखा एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट लिखा, ये बनाएगा सोडियम एसिटेट. फिर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से और उसके इसी तरह यहाँ सोडियम एसिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड. और जब हम बेंजोइक एसिड को लिखेंगे फिर ये भी इसी तरह देगा. वो सोडियम बेंजोइक एसिटेट की जगह देगा सोडियम बेंजोएट. उसके बाद हमारे पास there are some reactions of carboxylic acid. Carboxylic ये heading है carboxylic acids replacing OH group जो उसका OH group अब OH group निकलेगा इससे by number of groups. उसमें होगा क्लोरो, उसमें होगा एमाइन, उसमें होगा बाकी ग्रुप्स. तो यानी उन रिएक्शनों में OH ग्रुप रिप्लेस होता है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स. आपको मैंने बताया है एसिड क्लोराइड की जनरल फॉर्म RCOCl. दिस इज कॉल्ड एन एसिड क्लोराइड. अगर हम इसको CH3COCl लिखेंगे तो ये इसको कहेंगे एसिटाइल क्लोराइड. अगर C6H5COCl होगा तो इसको कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड. ये आपको मालूम होना चाहिए पहले. तो इसको कहेंगे एसिटाइल क्लोराइड.
इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स, इसका मतलब है रिएक्ट, आपको आता है रिएक्शन विद, देखिए रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 एंड SOCl2। SOCl2 को कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। यानी फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड का मतलब है, आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद, अलग पूछा जाएगा PCl5 या होगा PCl3 या होगा SOCl2। PCl5 होगा ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड। तो हम अलग अलग दिखाएंगे एक ही साथ, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, तीनों में एसिड क्लोराइड बनता है। पहले हम लिखेंगे CH3COOH। देखिए ये किस तरह लिखेंगे, इसमें से रिप्लेस कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप। CH3COOH, ये थोड़ा दूर रखा, प्लस PCl5, तो ये देता है CH3COCl पहले, यानी इसने दे दिया एसिड क्लोराइड, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। तो उसके बाद निकलेगा H मिलेगा क्लोरीन के साथ, पहले HCl बनाएगा, फिर क्या बचता है, फिर P और यहाँ एक O बचता है और Cl3, POCl फास्फोराइल क्लोराइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको रिएक्शन में पूछेगा व्हाट हैपेंस विद व्हेन कार्बोएसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5। हम लिखेंगे when acetic acid is treated with PCl5 it gives acetyl chloride plus hydrochloric acid and this phosphoride chloride। तो इसी तरह अगर हम बेंजोइक एसिड को मिलाएंगे, इसके साथ भी रिएक्ट होता है इसी तरह। तो PCl5 लिखेंगे, यहां लिखेंगे C6H5COCl, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, प्लस निकलेगा HCl, प्लस निकलेगा POCl3। ठीक, तो अब करेंगे रिएक्शन विद, ये थी रिएक्शन विद PCl3, पहले लिखेंगे, यहां था रिएक्शन विद PCl5। तो ये किस तरह CH3 लिखेंगे, इस तरह COOH प्लस PCl3, यहां फास्फोरस एसिड निकलता है, फास्फोरस एसिड PCl3, ये निकलेगा CH3COCl, ये तो यही देता है, फिर H3PO3, इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड। ये आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा होगा, ये एसिड उनका स्ट्रक्चर होता है, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, ये तो उसमें पढ़ा होगा, इसको कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड प्लस दिस। तो इसी तरह रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड की फार्मूला SOCl2 है। या अलग अलग आपको जब एस्टिक एसिड होगा या बेंजोइक एसिड होगा, तो इसमें बेंजोइक एसिड को भी इसी तरह बनेगा, C6H5 लिखना है, वहां अलग रिएक्शन होगी। आपको पूछेंगे गिव एनी 4 केमिकल रिएक्शन, तो आप इनमें ये अलग एक लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं। तो इसका कैटलिस्ट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये पायरिडीन है। पायरिडीन मैंने बताया है, पायरिडीन C5H5N। तो देखिए CH3COOH प्लस SOCl2, दिस इज, ये इसका कैटलिस्ट पायरिडीन है। तो इसका क्या नाम है, इसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड याद रखना यहां। तो ये देगा CH3COCl, और इसमें निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन SO2, तो और निकलेगा HCl। दिस इज अ सिंपल रिएक्शन। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। तो उसके बाद मैं आपको, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, AMIDS।
एमाइड को मालूम होना चाहिए RCONH2, ये एमाइड की ये एसिड एमाइड है, इसका नाम है एसिड एमाइड। अगर हम CH3 पहले ये मैं सिखाऊंगा CH3CONH2 डालेंगे तो इसको कहेंगे एसिटामाइड, एस्टामाइड। अगर इसको C6H5CONH2 होगा तो इसको कहते हैं बेंजामाइड। तो पहले हम लिखेंगे एमाइड्स की फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, इसका मतलब हो गया रिएक्शन विद, आपको पूछा जाएगा रिएक्शन विद अमोनिया, या आपको इम्तिहान में ये पूछा जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाउ विल यू प्रिपेयर एमाइड्स, or how will you prepare acid chlorides, or how will you prepare esters or acid anhydrides। तो आपको मालूम होना चाहिए एमाइड्स जब बनते हैं तो किसके साथ रिएक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमाइड्स बनाते हैं। जब क्लोराइड्स एसिड क्लोराइड्स बनते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्शन, ये मालूम होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है रिएक्शन विद अमोनिया। Carboxylic acids are treated with ammonia. They form ammonium salts first, and that ammonium salt upon heating decomposes to form amide. यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अमोनिया के साथ हीट करते हैं, मिलाते हैं, तो ये अमोनियम साल्ट बना। अमोनिया हो गया NH3, अमोनियम हो गया NH4। याद रखना। देखिए हम लिखेंगे CH3 या RCO, तो मैं चलो यहां हम ये करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH प्लस लिखेंगे NH3। ये H जो होता है ये इसके साथ मिलता है, ये बनाता है RCOONH4। इट इज कॉल्ड अमोनियम कार्बोक्सिलेट, इसका नाम है, वही हो गया ना अमोनियम साल्ट। अमोनियम जिस तरह सोडियम साल्ट था, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, समझ आया। अब फिर विच अपॉन हीटिंग, ये हो गया हीट, इस तरह देखो ये बनेगा, ये ब्रेक होगा, इसमें से लॉस ऑफ वाटर होगा, इट विल लूज ए वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा ये बनेगा RCONH2 और इसका नाम है एमाइड। यानी हीट करने से ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा तो वहां बनेगा H2O निकलेगा इधर, फिर RCONH2 बनेगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे CH3COOH प्लस लिखेंगे NH3, तो क्या निकलेगा CH3COONH4। इसका नाम ये अमोनियम है, ये क्या है कार्बोक्स एस्टेट, इसका नाम है अमोनियम। जिस तरह सोडियम एसीटेट, अमोनियम एस्टेट। तो ये सोडियम अमोनियम साल्ट बनता है। मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम साल्ट्स which upon heating lose a molecule of water to form amides। तो इसको जब हम हीट करेंगे तो ये देगा CH3CONH2 प्लस निकलेगा वही वाटर जो लॉस किया, इसको कहते हैं एसिटामाइड। तो इसको हम करेंगे C6H5COOH प्लस NH3, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C6H5CONH4, इसको कहेंगे अमोनियम बेंजोएट। तो इसको जब हीट करेंगे विच अपॉन हीटिंग गिव C6H5CONH2 प्लस वाटर, तो इसको कहेंगे बेंजामाइड। तो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम साल्ट्स व्हिच अपॉन हीटिंग गिव्स एमाइड्स, AMIDS। तो for example when acetic acid is treated with ammonia it gives ammonium acetate which upon heating loses the molecule of water to form एस्टामाइड। तो इसी तरह है C6H5COOH NH3, ये हो गया। जब बेंजोइक एसिड मिलेगा अमोनिया के साथ
तो ये करेगा काम, ये बनाएगा अमोनियम बेंजोएट, और जब ये हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो बेंजामाइड देगा. These were the reaction of chemical properties of the carboxylic acids. There are some other properties, for example, formation of acid anhydrides, और इसके अलावा formation of esters or oxidation, that those reactions will be taken by tomorrow. That's all.